So yesterday we did till 6 questions in this exercise. From today we'll start from 7th question. What is cos 45 degree? Value of cos 45 degree? So 1 by root 2. Very good. Yeah, you remember, huh? 1 by root 2. 1 by root 2 square will be 1 by 2. What is sine 60 degree? So root 3 by 2. Root 3 by 2. Root 3 by 2 square will be 3 by 4 plus sine 30 degree? 1 by 2. 1 by 2. Now if I have to solve this, 4 is the LCM. So 2 plus 3, 3 plus 3, 6. You will get the answer 3 by 2. Sine 30 square 1 by 4 cos 60 degree is equal to sine 30 degree. That is equal to 1 by 2. It's all easy. Sine, this is 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by 2, 1 by 2, 1. What is 10 square? 60 degree root 3. Root 3 square 1 by 3. It's an easy thing. I don't want you to time to go. Okay, tell me the answer for this. So you are liking the trigonometry, Dhoni? Yes, sir. Dhoni, I sent you that R.S. Agarwal questions on mensuration. I hope you have seen that. Yes, sir. I was doing it. I finished, Okay. I think, 8, 9 Okay. questions. Okay. How was like that is better questions or this book? This is OP Malhotra. This is better questions. Which you found better? So both of them were fine, but R.S. Agarwal was really easy. Okay. Means I'm doing this book is better. Than more or less, I found both books are having somewhat similar content. So if we do from one book, automatically other book we can do it very easily. Yes, sir. Sine 30 is 1 by 2. 1 by 2 square is 1 by 4. Cos 45 degrees 1 by root 2. 1 by root 2 square is 1 by 2 minus 4. 10 30 degrees 1 by root 3. 1 by root 3 square is 3. Divide by 2 sine 30 degree means 1 by 2 into cos 30 degree. Cos 30 is root 3 by 2 plus 10 45 degree 1. So I can write this as 5 by 4 plus 1 by 2 minus 4 by 3
divide by, this is to 1. This is 2 plus root 3 by 2. So then if I take LCM of 2, 3 and 2, 3 and 4, what is the LCM of 2, 3 and 4? That would be, if I take 2, this is 1, 3, 2. So 3 and 2. So 12 is the LCM. If 12 is the LCM, then 5 threes are 15. 15 plus 6, 15 plus 6, 21. 21 minus 21 minus 16. 5 by, okay, so if I take LCM, LCM is 12. So this is 3, 5 threes are 15 plus 6 minus 16 divide by, this is 2 plus root 3 by 2. So this is 21 minus 16 is 5. 5 by 12. So I can write this is 5 by 12 into 2 plus root 3 by 2. So this is 6. Your answer will be 5 by 6 by 2 plus root 3. That will be answer. Any doubt, Dhoni? No, sir, I got this. 11th one. Yes. Should I do this, Dhoni? 1 second, sir.
Yes, sir. Can you? If you see this question, 2, 2, 2, why is not here? Dhoni, you saw Family Man 2. What, sir? Family Man 2. No, sir. Okay. You're not seeing Family Man. No, sir. You missed something. Cos 60 degree plus 2 root 3 sin 30 degree sin 30 tan 60 minus cos 0 degree. So cos 45 degree means Dhoni, So 1 by root 2. cos 60 1 by 2. 1 by 2. So 1 by root 2 into 1 by 2. This all get cancelled. Plus this is 2 root 3 sin 30. Sin 30 means 1 by 2. tan 60 means root 3 Root 3. minus cos 0 degree means 1. 1. Yes, sir. Because if I get confused, I remember everything in terms of sine. Cos 0 degree means sine 90. So this is 1 plus 2 by 2 cancel 3 into 3. Root 3 into root 3. 3 minus 1. So your answer is 3. Yes, sir. 12th one. Yes, sir.
Dhoni, have you understand this? Yes, sir. 13th one. Yes, sir. क्या हुआ धोनी, आज मन नहीं है पढ़ने का क्या? No, sir, nothing like that. आज मुझे लगा सैटरडे है तो आज. Sir, is it 9/4? नहीं, it's 7/4. 1 second, sir. Sir, I'm getting 9/4 only. And let me check. Book it is given 7/4. So cos 0 degree means 1. So 1, Sin 45 degree is 1. 1√2 This is plus 1/2. 1/2 This is 1 minus 1/√2 plus plus 1/2. 1/2. So plus and minus 1/√2 will get cancelled now. 1. Yeah. What you are telling? What will get cancelled? So plus 1/√2 and minus 1/√2.
मल्टीप्लाई साइन इज ना दोनों. This is there in the form of a plus b into a minus b. This is a, this is a, this is b. You can write this as 1 plus 1 by 2 whole square minus 1 by root 2 whole square. This is 3 by 2 whole square means 9 by 4 minus 1 by 2. So 4 LCM. So 9 by 2, 7 by 4 will get done. It is there in this form a plus b into a minus b. Did you understand, Dunya? Should I do it again? No, sir, I understood. वो मल्टीप्लाई प्लस होता तो काट देते. ABC is the isosceles right triangle assuming AB equal to BC equal to X. Find the value of each of them. ये आपको कल मैंने बताया था ना दोनों टेबल के जो बिना टेबल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा ये आइसो राइट ट्राइंगल ये भी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल AB मान लो ये होगा AB इक्वल टू AC. ये X है ये X है तो ये √2x होगा दोनों. Yes, sir. So ये दोनों एंगल भी 45 डिग्री होगा तभी पॉसिबल है. साइन 45 डिग्री के वही चीज वही आंसर आना है आपका. साइन 45 डिग्री आपका क्या होगा 1 by √2. 1 by √2. 5 डिग्री को होगा 1 by √2. tan 45 डिग्री क्या होगा 1 आएगा. वही आंसर आएगा. इसको निकालने का अलग तरीका है. then show your complete neatly. So this फिफ्थ वन ये विदाउट यूजिंग टेबल मतलब आप वो जो वैल्यू जो जानते हैं जैसे करते हैं बस वही करना है. ये दैट डजंट मीन एनीथिंग. साइन 30 डिग्री क्या होता है 1 by 2. साइन 90 डिग्री 1 होता है. कॉस 0 डिग्री 1 होता है. tan 30 डिग्री क्या होता है 1 by √3. tan 60 डिग्री होता है √3. सो दिस इज ये क्या हो जाएगा आपका 1 by 2 minus 1 क्या होगा -1 by 2 plus 2 by 1. So 2 minus 1 by 2 क्या होगा 3 by 2. ये रहे Yes, sir. और ये क्या है दोनों ये प्रॉपर्टी है मतलब 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे ये सब चीजें कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा. अगर आप नोटिस कर रहे हो ये उस फॉर्म में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे. sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा. cos थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो ये बहुत सारे फॉर्मूलाज रटने पड़ते हैं 11th स्टैंडर्ड में. वही चीज को प्रूफ करने बोला है हम लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं. हमको sin 60 डिग्री का वैल्यू पता ही है 2 tan थीटा 2 tan 30 मतलब 1 by √3 डिवाइड बाय 1 plus 1 by 3. अगर आप सॉल्व करेंगे √3 by 2 आना. ठीक है ये सब थ्योरम है. जब आगे आप रटोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर सॉल्व करना है तो ये सब याद होना ही चाहिए. आपको याद होगा उस दिन जब मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था दैट डे वी आर यूजिंग दैट वी आर रीडिंग दैट सेगमेंट सेक्टर एरिया सेगमेंट. वहां पे ऑल दिस समवेयर हियर एंड देयर दिस विल कम फॉर अस. तो जैसे मैं आपको बताया ना अभी ये फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यही प्रूफ करने को दिया. अब इसी को जगह cos 2 थीटा जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला रखते हैं हम लोग. फिर इसी को आप ऐसे ले सकते हो ना. आपको पता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है. यू नो दैट ना sin Yes, sir. प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है. तो मैं चाहूँ तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी ले सकता हूँ माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो यही फॉर्मूला cos 2 थीटा हो जाएगा 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. यही cos 2 थीटा हो जाएगा. अगर sin थीटा की जगह आप लिख दोगे 1 minus
कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही सब प्रूव करने बोला आपको, तो आज यू डू एनी वे यू विल प्रूव द सेम थिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दोनों। Yes, sir. आगे हम लोग मतलब पढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे मतलब बढ़ते जाएगा ना, एज एज द टाइम विल प्रोग्रेस, so you have to know all this. So gradually we don't know, but somewhere these things will come. Okay, we can ignore that. So I hope you understood. If you substitute tan 30 degree here, or you substitute cos 30 degree, sin 30 degree here, ultimately you will get cos square theta minus sin square theta is equal to cos 60 degree. Well, ultimately this is theorem. Cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Sin 2 theta is equal to 2 tan theta by 1 plus tan square theta, या 2 sin theta cos theta. ये सब आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, जब भी आपको टाइम मिलेगा 11th स्टैंडर्ड का बुक 10th 11th विल स्टार्ट डूइंग, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू एज द टाइम विल, बिकॉज हियर एंड देयर फिजिक्स करोगे, फिजिक्स में भी ये चीजें आएगी आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी जैसे हमने वो क्वेश्चन मैथ उसका मोशन का बनाया, अभी हम लोग अब वो पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, तो फोर्स में भी फ्रिक्शन जब लगेगा, तो वहां पे दिस रेलिवेंस ऑफ एफ कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में, हियर एंड देयर दिस ट्रिग्नोमेट्री विल कम एनीवेयर। तो वही एज मतलब मैथ जितना अच्छा रहेगा, फिजिक्स उतना ही अच्छा हो जाएगा हमारा, और फिजिक्स में तो यू ऑलवेज हैव इंटरेस्ट आल्सो। डू दिस 7th one. Done, sir. How much answer you got? So we have to prove that 2 is equal to 2 अच्छा at अच्छा, the rest. sorry, second one. Yes, sir.
हुआ धोनी? Give me 1 second, sir. Sir, I'm not getting. अच्छा, so there is no problem with question. Let's see. 4 sin 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 to the power 4 प्लस 1/2 again to the cos power 60 4. डिग्री होता है 1/2, 1/2 to the power 4 minus 3 cos 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 Yes, sir. का स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री होता है 1, तो 1 1. इज इक्वल टू 4। अब ये हो जाता है 1/16, Yes, sir. तो 1/16 प्लस 1/16 क्या हो जाएगा 1/8, 4 इंटू 1/8 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1/2, तो क्या होगा Yes, sir. 2 प्लस 3/2, तो 4/2 होगा, इक्वल टू 2 होगा। व्हाट यू आर गेटिंग धोनी? Sir, I got 1, but I did a mistake there, so that's why. Let me see it again. Sin 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 to the power 4 क्या होगा 1/16, 1/16. 1/16 प्लस 1/16 करोगे तो 2/16 होगा, मतलब 1/8 ही होगा। Yes, sir. इंटू 4 करोगे तो 1/2 होगा, ये सही है। और cos 45 डिग्री 1/2, 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2, सो 3/2 प्लस 1/2 दैट इज 4/2, मतलब 2 होना चाहिए, यहाँ तो 4 लिखा। एक बार फिर से देख लेंगे, दोनों को गलती तो नहीं है। 4 इंटू 1/2 साइन 30 1/4 1/2 होल स्क्वायर, दिस इज 1/16 प्लस 1/16, 16 एलसीएम 2/16, 2/16 मतलब 1/8, 1/8 इंटू 4 मतलब 1/2, 1/2, this is cos 40 1/2, 1/2 minus 1, 1/2 minus 1, minus 1/2 होगा, minus 1/2 into minus 3, that is plus 3/2, plus 3/2 plus 1/2 equal to 2। क्वेश्चन में कुछ गलत है, this should be equal to 2। छोड़ो इसको। अब ये this kind of question what you see दोनों, question number 8, this we called as height and distance, one of the favorite topics of you can say maximum exams। ट्रिग्नोमेट्री से किसी को एक क्वेश्चन पूछना होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस का ही पूछता है, इट्स लाइक दैट मच इम्पोर्टेंट, सो इट्स वेरी इजी आल्सो। So a pole 15 meter long rest against a vertical wall at an angle of 60 degree। तो एक पोल है 15 मीटर लंबा, एक पोल है, वो एक वॉल से लाइक इट रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है, will how high up the wall the pool reach, ये पूछ रहा है आपसे।
ठीक है, हाउ फार इज द, ये पूछ रहा है आपसे, आप निकाल सकते हो इसको। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दोनों। है ना ध्वनि, यहाँ पे अगर x निकालना है तो साइन 60 डिग्री लगा देता हूँ। साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर है आपका x, हाइपोटेन्यूस है 15। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ध्वनि, 15 √3/2। ये हो गया आपका x का वैल्यू। y का वैल्यू के लिए क्या करूंगा ध्वनि, मैं cos 60 डिग्री लगा देता हूँ। cos 60 डिग्री होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो cos 60 डिग्री हो गया आपका 1/2 इज इक्वल टू y/15। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा ध्वनि, 15/2 या 77.5 मीटर। आ रहा है ना समझ में ध्वनि आपको। Yes, sir. 15/2 इंटू 1.732, एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए तो यू कैन फाइंड दैट आउट। 0.866 इंटू 15 कर दो, तो 0.866 इंटू 15 कर दो, दिस इज 30। 30 का 3 ऊपर गया, 33 का फिर 3 ऊपर गया, 4330, ये हो गया 668। दिस इज 0, दिस इज 9912990 और 3 डेसिमल लगाना है तो अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर, यूनिट मीटर में। क्लियर है ध्वनि। Yes, sir. In the given triangle कैलकुलेट द थीटा, थीटा निकालना है आपको। ठीक है, बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा तुम्हें। तो ध्वनि ये क्या है, अगर ये थीटा है ध्वनि, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनिस होगा। तो मतलब Yes, sir. परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस दिख रहा है, मतलब दिमाग में क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर है ध्वनि आपका 20, हाइपोटेनिस है ध्वनि आपका 40। तो So मतलब 1/2. हाँ, साइन थीटा मतलब 1/2। 1/2 कब पॉसिबल है, जब थीटा 30 डिग्री हो। Yes, sir. बस वो 10th वाला।
कैसे करना? विदाउट यूजिंग टेबल सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल एट सी। राइट एंगल है एट सी में, राइट एंगल है ठीक है, whatever, ठीक है। गिवन ए इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लो, ये 30 डिग्री है, सी 40 है, साइड सी 40 है, साइड सी, सो सी मतलब 40 है, कैसे करूंगा मैं? राइट एंगल है सी, सी 40 मतलब इसका अपोजिट वाला बोल रहा है 40 है, तो मतलब सी जब भी कोई भी ऐसा साइड को हम लोग उससे रिप्रेजेंट करते हैं जो एंगल के अपोजिट हो, तो सी बोल रहा है तो मतलब अब सी के अपोजिट वाला साइड बोल रहा है। तो अगर इस केस में मुझे क्या निकालना है, मुझे विदाउट सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल एबीसी राइट एंड गिवन, क्या सॉल्व करूंगा? विदाउट यूजिंग टेबल solve each of the following right angle triangle ABC right angle C given E is equal to इतना। सॉल्व क्या करूँ? बाकी साइड का वैल्यू निकालना, क्या करना है? ये 30 होगा तो ये 60 होगा दोनों, ठीक है, ये 30 होगा ये 60 होगा दोनों। Yes, sir. तो ये आप ऐसा दिमाग में रखना धोनी, हमेशा 30 60 और 90 वाला जब भी ट्रायंगल होना धोनी, आप ऐसा ये चीज याद कर लो। आप ये 30 60 वाला जब भी ये कॉम्बिनेशन वाला ट्रायंगल आपको जब भी दिखे, आप ऐसे करके याद कर लो कि 30 के अपोजिट वाला साइड ए होगा तो 60 के अपोजिट वाला साइड √3a होगा, और ये जो होगा ये 2a होगा। ये सब Okay, sir. पाइथागोरस थ्योरम से हम सब प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन, ये अगर ए होता, ये मान लो ये बी है, मान लो ये बी है, ये मान लो सी है। So your voice is breaking. Oh, my voice is breaking. 1 minute. Dhoni, anything better? Yes, sir. Now I can hear you. So मतलब you can remember this Dhoni कि 30 के अपोजिट वाला साइड ए है, तो 60 के अपोजिट वाला क्या साइड होगा? तो इफ यू वांट दिस, वी नो दैट tan 30 डिग्री is equal to a by b. So tan 30 degree is 1 by √3. So 1 by √3. is a by b. I can say b is equal to √3a. √3a. Yes, अगर sir. ये √3a हो गया धोनी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2a। ऐसा आपने को रट लेना है धोनी। तो ऐसे अगर 45 अपना टाइम वेस्ट, जैसे एग्जाम में जब भी आए ये a होगा ये होगा √2a, so they are always in this ratio 1:1:√2 isosceles right angle triangle. These are always in the ratio 1:√3:2. So like that we remember. Here if we see this is 40, तो ये है आप, ये हो गया धोनी, फिर 2a, आप समझ रहे हो धोनी? तो 30 के अपोजिट वाला क्या होगा? 20 होगा, आप समझ रहे हो? 20. Yes, sir. ये हो जाएगा 20 20√3. अपने को सॉल्व करने का टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत बन जाएगा अपना। अब जैसे ये वाला करूं, I'll do this a b, ये बोला c राइट एंगल एट c बोला हुआ है, ठीक है, एंड b 60 बोला है, ये 60 बोला है तो ये 30 होगा, एंड c के अपोजिट वाला साइड क्या है? 15 है, ये 15 है दोनों, तो ये 2a है, तो 30 का अपोजिट वाला हो जाएगा 7.5, और ये हो जाएगा Yes, sir. 7.5 √3. जो भी होगा एग्जामिनर जैसा बोलेगा अपन कर लेंगे। अब अगर 45 डिग्री अगर ट्रायंगल है तो वो आइसोसेलेस होगा, दैट इज 45 डिग्री ट्रायंगल, देन दैट इज 45 डिग्री, देन इट वुड बी आइसोसेलेस। दिस इज 45, तो ये भी 45 होना है। दिस इज सी, ये मान लो ए, ये मान लो बी, तो ए हो ये बोल रहा है मतलब एंगल ए के अपोजिट वाला साइड है 7। अगर एंगल ए के अपोजिट वाला साइड अगर 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये 7 √2 हो जाएगा। क्लियर है ना दोनों?
धनी कोई डाउट? No, sir. ये वाला बनाओ, 11th वाला बनाओ. Yes.
So 13 by 12. So 13 by 12. Yes, sir. 3 by 2. Yes, sir. So is it 86.6 meter? So theta is 30. So 1 by 2 plus root 3. Yes, sir.
Yes, sir. This you understood, Dhoni? I'm doing it, sir. 1 second. Okay, yes, sir, I understood. So like we use that concept, the 30, 60, 90, and 45 Yes, sir. degrees. So you know that 1:1 root 2, and this is 1:root 3:2. That concept we use here. Yes, sir. Tuition. Yes, 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 yes. Thank you.
Tell me, Dhoni, how will you do this? Same thing, Dhoni. This will be 2a. Yes, sir. So This will 7.5, be 7.5. This will be 7.5 and 7.5 root 7.5 3. root 3. Rectangle ABCD. Rectangle CBCD. AB is 20 centimeter. BAC is 60 degree. BAC is 60 degree. Okay. Calculate the side. If this is 60, this would be 30, na Dhoni? 30. Yes, sir. Same thing. Same logic, same. This would be 30. ये 30 है तो धोनी दिस इज So लाइक 10, दिस ये 40 हो जाएगा. आप समझ रहे हो धोनी? ये हो जाएगा 20, 40, 20 root 3. Yes, sir. तो कैलकुलेट द साइड BC 20 रूट 3 डायगोनल AC हो जाएगा आपका 40. 40 and BD BD ये 20 हो जाएगा धोनी. 20. Yes, sir. ये 20 हो जाएगा. वैसे रेक्टेंगल का डायगोनल तो सेम होता है धोनी. Yes, sir. ये तो ये भी 40. हाँ. ये 18 बनाओ. अगर धोनी ये 30 डिग्री ये 1.5 ये कितना हो जाएगा धोनी? 1.5 रूट 1.5 root 3. बस उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग. 1.5 into 1.73. 1.5 इंटू जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर है. निकाल लेता हूँ मैं. अब आप 19 बनाओ. हो जाएगा 1.73 इंटू 15. 173 इंटू 15 हो जाएगा 15. 36 3 8 देखो 3 7 1 देखो 5 9 15 225 कितना 3 डेसिमल है. 2.595 और 2.595 19 बताओ. An electric pole is 10 meter high. ठीक है. Steel wire tied to the top of the pole is affixed to the point on ground to keep the pole upright. Upright मतलब सीधा होता है ना. If the steel wire makes a angle of 45 degree, if the steel wire make an angle of 45 degree with the horizontal, तो put to find the length of the steel. ध्वनि ये अगर 10 है, find the length of steel. स्टील का स्टील वायर. अच्छा ये पूछ रहा आपसे तो 10 रूट 2 हो जाएगा ध्वनि. हो गया. आ रहा है ध्वनि? Yes, sir. Yes, sir. है ना? 10 इजी है ना root ध्वनि? 2, and when you take 1.41, then it will be 14.14 meter. 14.14 मीटर जो भी. ये वाला देखो. ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसा आता है वो पेड़ टूट के गिर जाता है तो वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन. ऐसा मान लो ध्वनि एक पेड़ था 15 मीटर का. इट इज अ ट्री. ट्री ऑफ 15 मीटर ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे. ऐसा पेड़ था ध्वनि. ऐसा सोचो ये पेड़ था ऐसे करके. ये टोटल था 15 मीटर है ना. ये टूट गया. ऊपर का कुछ पार्ट टूट गया. टूट के इट बिकेम लाइक दिस. Such that the top reaches the ground make angle of 60 degree. ठीक है. At what height from the ground will the tree break? What height from the ground? अच्छा ये पूछ रहा है आपसे. ये पूछ रहा है. ये h पूछ रहा है आपसे. At what height? ये h का वैल्यू पूछ रहा है. अगर ये 60 है तो ये 30 होगा ध्वनि.
है ना धोनी? Yes, sir. तो अगर ये 30 है, मान लो धोनी ये x है, तो ये हो जाएगा √3x, Yes, sir. और ये आपको पता है कि ये हो जाएगा आपका 2x, 2x. Yes, sir. और आपको ये पता है कि 2x प्लस √3x वॉज 15 मीटर। क्या आप सब Yes, sir. टोटल हाइट तो उसका वही था। तो इससे अगर मुझे x का, मुझे क्या निकालना, मुझे √3x का वैल्यू निकालना। चलो पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा धोनी? x हो जाएगा आपका 15/2 √3 2 root. Yes, sir. प्लस √3। तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, तो 2 माइनस √3 से इंटू कर देता हूँ। 2 माइनस √3 से इंटू किया तो मेरा x का वैल्यू आ गया धोनी 15 इंटू 15 into 2 root 2 ये हो minus जाएगा root आपका 3. 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा। 4 minus 3. Yes, 1 हो sir. जाएगा, तो x Yes, का sir. वैल्यू आ गया धोनी। 15 into 2 30 minus निकालना है h, मुझे तो जनरली h निकालना है ना। h क्या धोनी आपका 15 root 3 इंटू 2 माइनस 2 minus 3. Yes, तो मैं sir. इसको सॉल्व कर लूँ। 15 अगर मैं 3 को अंदर घुसा दूँ तो हो जाएगा 2 √3 2 माइनस, root 3 minus 3. तो ये हो जाएगा 15 15 2 root 3. 1.73 1. Yes, 1.73 sir. बोल रहा है। उसको 2 से इंटू कर देता हूँ, ये 6, ये 14, ये 5, ये 5, ये 3 होगा ना, तो ये हो गया 6, ये 14, 1 कैरी, तो 3 कितना 1.73 है ना, तो 3 So पॉइंट 3.46. तो 0.46 इंटू 15, 15 सिक्स क्या होता है धोनी 90, 90. Yes, sir. होता है 60, तो ये जगह 690 2 डेसिमल, 690. तो 6.9 मीटर आना चाहिए h का वैल्यू। बुक में चेक कर लेता हूँ, 6.9 मीटर आना चाहिए। समझ में आ रहा है धोनी? आपको वो कितना इजी हो गया? Yes, sir. जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो इट बिकेम सो इजी फॉर अस। 20 का आंसर 6.9 सही है। समझ आ गया धोनी? कितना मतलब अपने को मेहनत ही नहीं करना क्वेश्चन के ऊपर। ये दिया द स्ट्रिंग ऑफ द काइट 150 मीटर लॉन्ग, मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। काइट का स्ट्रिंग है 150 मीटर में, कल इसको बोल रहे हैं, ठीक है, पतंग यहाँ उड़ रहा है पतंग, ठीक है। तो मेक एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। धोनी धोनी ये 60 है, ये अगर धोनी 60 हो गया, ये 30 हो गया धोनी, ये 150, तो 2a हो गया धोनी। Yes, sir. तो a क्या हो जाएगा धोनी 75, 75. और ये कितना हो जाएगा 75 75 root 3. वही आपका आंसर है। तो 75 इंटू 75 into 1.73. 1.73, इसको इंटू कर देते हैं हम लोग, ये हो गया 15 कैरी, 36 3 कैरी, 2 कैरी 55, 5 कैरी 12, तो ये हो गया आपका 5 9 1 2 1 3, और कितना डेसिमल है? 2 डेसिमल है ना, 139.75 आना चाहिए। लेट मी सी इन बुक में 129. So 129 there's no carry over there. अच्छा 129.75, ठीक है, ग्रेट। सो वी गॉट द आंसर। इजी है ना धोनी? Yes, sir. है ना? ये हाइट एंड डिस्टेंस के जब भी क्वेश्चन है ना, आप बस ये चीज याद रखना, जो हमको 2 टाइप ऑफ राइट ट्राइंगल जो मैंने आपको बोला, तो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1:1:√2, दिस विल इन द फॉर्म ऑफ 1:√3:2। बहुत सारे ज्योमेट्री में अभी ट्राइंगल भी करेंगे हम लोग, तो ट्राइंगल्स की बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बड़े बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी बस हम लोग को ये याद रखेंगे, तो वी कुड डू इट वेरी फास्ट। ठीक है धोनी, आई विल वाइंड अप द क्लास। आई विल सी यू एट 7 o'clock. Is that okay with you? Yes, sir. Okay धोनी, then I'll see you. Okay, thank you, sir. Bye, take care. Bye.